لیکن گناہوں پر جو آئی ہوئی موت ہے اس پر افسوس ہوگا، بے حیائیوں پر آئی ہوئی موت پر افسوس ہوگا۔ کا کون افسوس کرے؟ کیوں افسوس کرتے ہو؟ اگر کسی کا جنازہ 4 لوگوں میں گیا ہے، کچھ لوگوں کو ہم نے سنا ارے بڑی بری موت ہوئی، نہیں میرے عزیز، بری موت اس کو نہیں کہتے، بری موت کفر پر ہو وہ بری موت ہے۔ ایمان پر اگر مر گیا اور 70 ٹکڑے بھی ہو گئے تو وہ بری موت نہیں، وہ شہادت کی موت ہے، سبحان اللہ، شہادت ہے، اسے بری موت نہیں کہا جائے گا۔ جنازے جاتے ہوئے دیکھتے ہیں اور سج سنور کر کے جاتے ہیں، سنیوں کے جنازے تو الحمدللہ اور سجتے، کیا بات، دوسروں کے تو پتہ نہیں، چھپ کے چلے جاتے ہیں، لیکن ہمارا حال یہ ہے الحمدللہ، صاف ستھرا کفن پہناتے ہیں، خوشبو لگاتے ہیں میت کو، سرما بھی لگاتے ہیں، جنازہ تیار ہونے کے بعد پھول بھی ڈالتے ہیں۔ کبھی سوچا یہ کیوں؟ مرے ہوئے آدمی کو عطر کی ضرورت کیا ہے؟ وہ تو قبر میں جا رہا ہے، آنکھیں بند ہو گئی، اب سرما لگانے کی کیا ضرورت ہے؟ اور یہ سفید کپڑے میں ڈھانکنے کی کیا ضرورت ہے؟ بزرگوں سے پوچھو تو یہ بتائیں گے میرے عزیز یہ جا تو رہا ہے قبر میں، لیکن آج یہ میرے مصطفیٰ کے دیدار کے لیے جا رہا ہے، سبحان اللہ، اس لیے سجایا جا رہا ہے شب گور بھی اسی گل سے ملاقات کی رات، اس لیے ڈر اور خوف نکالو۔ ایمان والا بندہ موت سے اس لیے نہیں ڈرتا، اسی لیے یہ دنیا جانتی ہے کہ اس کے اندر خوف موت کا نہیں، ان کے اندر سے عشق مصطفیٰ نکال لو، پھر یہ ہر چیز سے ڈرنے لگے گا، ہر چیز سے خوف۔ بزدل کب بنتا ہے بندہ؟ جب میرے آقا کے قدموں سے دور ہوتا ہے، حضور کے قدموں میں رہنے والا بزدل کبھی نہیں ہوتا۔ عاشق رسول ہمیشہ وہ بطل جلیل کہلاتا ہے، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا وفادار۔ بہرحال آج پھر سے میں آپ کو ایک بات بتا دوں کہ تم اگر یہ سوچتے ہو کہ کچھ لوگوں کی نوکری کا سوال ہے، کچھ لوگوں کے لیے لڑکی کا سوال ہے، کچھ لوگوں کے لیے اپنے بزنس کا سوال ہے، اگر پورا حضور کی سنتوں پر آ جاؤں نوکری کا مسئلہ آ جائے گا، کچھ لڑکیوں کا مسئلہ آ جائے گا، کسی کے تجارت کا مسئلہ آ جائے گا۔ یہ سب شیطانی وسوسے ہیں جو تمہارے دماغ میں چل رہے ہیں، سب شیطانی وسوسے ہیں۔ اللہ رزاق حقیقی اور میرے مصطفیٰ کے قدموں سے رزق کیوں نہیں ملے گا؟ ہمارا تو یہ کہنا ہے، اعلیٰ حضرت نے کیا سبق دیا؟ خلق کے حاکم ہو تم، رزق کے قاسم ہو تم۔ یا رسول اللہ جو ملا تم سے ملا، تم پہ کروڑوں درود۔ کیا بات، جب تمہیں پتا ہے جو کچھ بھی ملنا ہے میرے مصطفیٰ کے صدقے میں ملنا ہے، تو پھر یہ شیطان جو تمہارے دماغ میں ڈال رہا ہے حضور کی عادتوں پر، حضور کے اخلاق پر آؤں گا، دنیا چھوٹ جائے گی، دکان بند ہو جائے گی، لڑکیاں چھوڑ جائیں گی، اگر ایسی چھوڑتی ہیں تو چھوڑ جائے، جو تمہیں نبی پاک کی سنتوں پر قبول کر لے انشاءاللہ وہ یہاں پر بھی ساتھ ہوں گے، آخرت میں بھی ساتھ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا بات ہے، ہاں یہ بات یاد رکھ لے، اور یہ بات بھی سمجھ کر کے چلو، آج کے بعد کل پرسوں جب بھی موت تو آنی ہے، ملک الموت روزانہ تمہارے انتظار میں ہے، جب وقت ختم ہوگا روح کھینچ لیں گے اور تمہاری آنکھیں بند اتنے بے یار و مددگار ہو جاؤ گے کہ دنیا تمہیں اٹھا کر قبر کی تاریک وادی میں چھوڑ آئے گی۔ تمہیں پتا ہے اس ایسی تاریکی میں چھوڑ آئے گی جہاں تم پکار نہیں سکتے، کسی کو بلا نہیں سکتے۔ ایک حدیث میں نے پڑھا، حضور فرماتے ہیں میت کو سب سے زیادہ شوق یا حسرت کس بات کی ہوتی ہے جانتے ہیں؟ قبر میں جانے کے بعد میت یہ چاہتا ہے، آپ بھی چاہیں گے ہم بھی چاہیں گے، مرا ہوا آدمی قبر میں جانے کے بعد سب سے زیادہ اس بات کی خواہش رکھتا ہے کہ میرے رشتہ دار، میرے دوست و احباب تھوڑی دیر میری قبر کے پاس بیٹھے رہیں۔ وہ جب تک بیٹھے رہیں گے اسے دل کا قرار ہوگا، انس ہوگا، یہ حدیث میں ہے، لیکن بیٹھتا کون ہے؟ سب چھوڑ کر چلے آتے ہیں، قریبی دوست بھی مٹی ڈال کر جلدی سے قبرستان سے واپس گھر آتا ہے،
अपने बाप का जनाजा ले जाने वाला बेटा भी तख्तियां बंद करके कब्र की मिट्टी डाल करके जब घर आता है, मैयत पुकार रहा होता है, उसे सब चीजों की खबर है। लोगों के चलने के चप्पल की आवाज तक मुर्दा सुनता, लेकिन इतनी तारीक कब्र, हाथ उठाओ तो हाथ नजर ना आए। और ऐसे दफन करके आते हो, न एक तकिया देते हैं, न एक बोरिया, न एक चादर, और न कब्र में कोई रोशनदान सुराख, कुछ नहीं। ये बातें मैं क्यों कह रहा हूं? तवज्जो, जब तुम अपने दोस्तों को भी जाते हुए देखोगे, तो मैं दफन करने वाला बेटा भी जाते हुए देखोगे, भाई भी जाते हुए तुम देख रहे होंगे कब्र के अंदर, सब छोड़कर चले जाएंगे। अंधेरा 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 कब्र का। उस अंधेरी रात में अगर कोई रोशनी लेकर आता है तो ताजदार मदीना की जात, सुभान अल्लाह, मेरे सुभान आका अल्लाह। सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की जात है। क्या बात। उस कब्र की अंधेरी रात में वो रोशनी ले आएंगे। और मेरे अजीजों, जब तुम्हें पता है कि कब्र में हमें उनकी जरूरत है, हश्र में उनकी जरूरत है, तो फिर सुन लो आला हजरत क्या कहते हैं। आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, कल न मानेंगे कयामत में अगर मान गया। हमने दुनियादारों को भी देखा है, उनके घरों पर इज्जत ढूंढने वाले, उनकी जूतियों पर इज्जत ढूंढने वाले, उन पर अपनी जिंदगियां निछावर करने वाले, बुढ़ापे में तुम्हें भी तन्हा छोड़ दिया जाता है। पार्टियों से निकाल करके तो ऐसा उन्हें बेवा बना दिया गया है कि कोई पूछता तक नहीं है। लेकिन ऐ सुन्नी मुसलमानों, मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करने वाला ये बात यकीन के साथ याद रखे, मेरे आका ने कभी अपने गुलामों को तन्हा नहीं छोड़ा, कभी तन्हा नहीं छोड़ा। अबुल लैस समरकंदी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते, एक वाकया लिखते, मक्का मुकर्रमा में एक शख्स का इंतकाल हो गया था, और जैसे ही वो इंतकाल कर गया, उसका चेहरा जानवर की तरह बन गया। एक ही बेटा था, सुनो, एक ही बेटा था, और बाप का चेहरा जानवर की तरह हो गया। कुछ गुनाह किया होगा, कुछ गलतियां किया होगा। अब बेटे ने जब बाप का चेहरा बिगड़ता हुआ देखा, फौरन दरवाजा घर का बंद कर दिया, और देख करके मैयत को डर लगने लगा कि अब लोगों को दीदार कराऊं कि नहीं कराऊं, जनाजा उठाऊंगा, लोग तो देखने आएंगे, दफन कैसे करूं। घर की औरतों को सबको समझा बुझाकर बिठा दिया और कहा, अब मैं ऐलान नहीं करूंगा, बाहर दफन करने नहीं ले जाऊंगा, घर के अंदर ही गड्ढा खोद कर अपने बाप को यहीं दफन कर देता हूं, ताकि किसी को पता ही ना चले, वरना बेइज्जती हो जाएगी, बड़ी जिल्लत उठानी पड़ेगी। नौजवान लड़का घर में रोता हुआ बैठा है, मेरे बाप के साथ क्या हो गया? वो रो रहा था। अचानक उसके घर के दरवाजे से खुलने की आवाज आई। अचानक दरवाजा खुला, एक बुजुर्ग घर के अंदर आए। वो आते ही उनके चेहरे पर चादर थी, वो सीधे मैयत के पास गए, चादर हटाई, उसके चेहरे पर हाथ रखा, फिर चादर बंद कर। फिर इस नौजवान लड़के के पास आए। वो बुजुर्ग कहते, क्या हुआ बेटा, क्यों रो रहा है? नौजवान लड़का कहता है, मैं तो आपको देखा नहीं, कहां से आप अंदर आ गए? मैंने दरवाजे सब बंद कर दिए थे, लेकिन अब आप आ गए तो क्या देखते नहीं मेरे बाप का चेहरा बदल गया है? मैं अपने बाप को लोगों के सामने कैसे जनाजा उठाऊं? आप नहीं देखते चेहरा जानवर की तरह हुआ है। वो आए हुए बुजुर्ग ने कहा, बेटा जाके देख तो सही, तेरे बाप का चेहरा सलामत तो है, कुछ हुआ नहीं। वो नौजवान खड़ा हुआ और गया अपने बाप की लाश के पास, चादर हटाई तो देखता है अपने बाप का चेहरा चांद की तरह चमक रहा है, खूबसूरत है। वो खुशी के मारे रोते हुए सज्जा शुक्र में गिर गया, अल्लाह का शुक्र अदा करते हुए फिर खड़ा हुआ। उसने रब ताला की बारगाह में अर्ज किया, मौला तूने फरिश्ता भेज दिया मेरे घर पर, ये कौन बुजुर्ग है जो मेरे बाप के चेहरे को उन्होंने ठीक कर दिया? उस वक्त तक वो बुजुर्ग घर से निकलने को थे, दरवाजे तक पहुंचे थे। ये दौड़ता हुआ आया और उनका दामन पकड़ लिया, कहा आप कौन हैं? अल्लाह का फरिश्ता, अल्लाह की तरफ से आए हुए।
आपने मेरे बाप के चेहरे को ठीक कर दिया, ये एहसान क्यों किया? वो आए हुए बुजुर्ग पलटते हैं और कहते हैं अना मुहम्मदुन रसूलुल्लाह, मैं मोहम्मद अल्लाह का रसूल हूं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या बात। अल्लाह अकबर। जैसे ही वो नौजवान सुना, कदमों में गिरा, कहा आका मेरे घर आपकी आमद हुई और इस हाल में मुझे बताएं मेरे बाप के साथ क्या हुआ। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं तेरे बाप का कोई एक गुनाह ऐसा था जिससे मौला नाराज था, रब्बे कदीर गजबनाक था। जैसे ही तेरे बाप का इंतकाल हुआ, मौला ने अपने गजब का इजहार उसके चेहरे पर किया, तेरे बाप का चेहरा बदल गया। लेकिन ऐ नौजवान, तेरे बाप की एक अच्छाई थी, एक अच्छाई ये थी कि तेरा बाप उस वक्त तक बिस्तर पर सोता नहीं था जब तक 100 मरतबा मुझ पर दुरूद नहीं पड़ता था। हाँ हाँ, क्या बात है, वाह वाह वाह। हुजूर फरमाते हैं रोजाना इसकी आदत थी। गुनाह होंगे लेकिन अपने नबी को याद किए बगैर सोता नहीं था। जो फरिश्ता इसके दुरूद मुझ तक पहुंचाता था, आज वो फरिश्ता आकर कहने लगा गजब होगा या रसूल अल्लाह, आप पर दुरूद पढ़ने वाला वो बंदा आज मर गया लेकिन मौला के जलाल का शिकार हुआ, अल्लाह के गजब का शिकार हुआ है। अगर आका आप उस पर रहम न करेंगे तो दुनिया बाद में ताना देगी, दुरूद पढ़ने वाले का चेहरा ही सलामत नहीं रहा तो किसका सलामत रहेगा। मेरे आका फरमाते हैं मैं अपनी कब्र से उठ करके आया और तेरे बाप के चेहरे को देखा तो बिगड़ा हुआ था। मैंने हाथ रखा, अल्लाह की बारगाह में सिफारिश की, मौला ये वो चेहरा है जो मुझे याद किया करता था। रब्बे कदीर ने फरमाया महबूब अपना हाथ उठाओ, हम तुम्हारी सिफारिश पर तुम्हारे गुलाम के चेहरे को चांद सी शबाहत दे, सुभान अल्लाह, सुभान खूबसूरती अता करेंगे। अल्लाह तबारक व तआला ने उस बंदे को मेरे आका की सिफारिश पर फिर से वो हुस्न जमाल अता किया। मैं ये बात जब पढ़ता हूँ आंखें भीग जाती हैं, इसीलिए फिर बरेली के इमाम की बात याद आती है, जो न भूला हम गरीबों को रजा, जो न भूला हम गरीबों को रजा, याद उसकी अपनी आदत कीजिए। ऐ मुसलमानों, मैं आज फिर से तुम्हें करीब ला करके कहता हूँ इधर उधर मत देखो। अगर तुम्हारे दर्दों को कोई आज समझने वाला है, तुम्हारे गमों को और तुम्हारे गम की दास्तान को कोई अगर सुनने वाला है तो वो मेरे आका की जात है, वो ताजदार मदीना की जात है। दुनिया तुम्हारे गमों पर हाथ नहीं रखती, ये तुम्हारा मजाक उड़ाती है। तुम जिसके पास जाकर के शिकायत करते हो हमारा ये हाल हो गया, हमारा वो हाल हो गया, हमने देखा है कि ये दुनियादारों ने हमेशा हमारा मजाक उड़ाया है। तुम्हारे हाथ में 2 चॉकलेट दे देंगे, तुम्हारे हाथ में कोई चीज थमा करके भेज देंगे, लेकिन तुम्हारे दर्दों का मदावा करने वाला कोई नहीं। अगर कोई है सच्ची मोहब्बत तुमसे करने वाला, वो आमिना का लाल है, वो मेरे मुस्तफा की जात है। इसीलिए मैं कहता हूँ जो कब्र में जाकर के भी मेरे आका हम गुनहगारों को याद करते रहे, मेराज के सफर में पहुंचकर अपने रब्बे करीम की बारगाह में हम गुनहगारों की सिफारिश करते रहे, क्या तुम्हें ये ज़ेब नहीं देता कि आज रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए अपनी जिंदगियां वक्फ कर दो, अपने शब रोज वक्फ कर दो। जो न भूला हम गरीबों को रजा, याद उसकी अपनी आदत कीजिए। अब मैं अपनी गुफ्तगू को समेटते हुए एक बात जरूर कहूंगा, मैं तुम्हारे जज्बात को बेदार करने के लिए आया हूं। अगर किसी के अंदर बुज़दिली है, खौफ है तो निकालो। अब बकिया जिंदगी की हर सांस हम नबी पाक की मोहब्बत के लिए वक्फ करेंगे इंशाअल्लाह। हुजूर के लिए जिएंगे, हुजूर के लिए मरेंगे। बरेली से करीब रहते हो, बल्कि तुम्हारा जिला बरेली है, तुम्हारा जिला बरेली है और तुम्हारी किस्मत पर पूरी दुनिया रश करती है। हम तो बहुत दूर हिंदुस्तान के साउथ से ताल्लुक रखते हैं, हमारा आबाई वतन कर्नाटका है, लेकिन मिस्र में जाएं, मदीने में जाएं, लोग हमको बरेली से पहचानते हैं। क्या बात है, वाह वाह। क्यों? अब तुम्हारा हक ज्यादा है बरेली के रहने वाले,
बरेली के इमाम के करीब रहने वाले, इस नसीहत को याद रखो। उस बरेली के इमाम ने अपनी मोहब्बत तुम्हारे सीनों में नहीं डाली, पूरी जिंदगी भर कलम चलाया है तो मेरे मुस्तफा की मोहब्बत तुम्हारे सीनों में हाय डाली। हाय हाय, नारे तकबीर, इसीलिए पूरी नारे दुनिया- रिसालत, इश्क मोहब्बत, नबी रहे आला हजरत। इसीलिए पूरी दुनिया आज ये बरमला कहती है, डाल दी कल्ब में असमत मुस्तफा सैयदी आला हजरत पे लाखों सलाम। उस बरेली के इमाम की ये नसीहत याद रखो। क्या नसीहत? उन्होंने ये सबक दिया था, दहन में जुबान तुम्हारे लिए। या रसूल अल्लाह, दहन में जुबान तुम्हारे लिए, बदन में है जान तुम्हारे लिए। हम आए यहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी वहां तुम्हारे लिए। ये जिंदगी गुजारने का तरीका है, ये जिंदगी गुजारने का तरीका है। और जिस दिन तुम बेदार हो जाओगे, जिस दिन तुम खड़े हो गए, ये दुनिया फिर 100 साल के लिए सोने पर मजबूर हो ही जाएगी। आज देख लेना, ये हमारी कौम बेदार हुई है इंशाअल्लाह उल अज़ीज़। अब ये बच्चे खामोश नहीं रहेंगे।